اگر سچ بولیں گی تو سب سے پہلا اور تلخ سوال، آفتاب اقبال صاحب یو کے ٹیم لے کے جا رہے ہیں۔ 11 اگست کو آپ اپنے خاندان کو چھوڑ کے، اپنے بڑے بھائی کا شوق چھوڑ کر آفتاب اقبال صاحب کے پاس پہنچی اور پروگرام کیا، تب بھی آپ ساتھ تھی۔ اپنے بھائی کی ڈیتھ کو چھوڑ کر، خوشی غمی دن رات آنسو چھوڑ کر اپنے بھائی اپنے باس کے ساتھ تھی۔ جب یو کے ٹیم جاتی ہے تب وہ بہن، وہ شاگرد کہاں ہے؟ کیوں نہیں شاید، کیوں کٹ ہے؟ یہ ہماری عوام کو بتائیں۔ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی، میں سیکھتی رہی۔ ہو سکتا ہے کہ میں آنے والے وقت میں اس قابل بن جاؤں کہ میں یو کے آپ کو نظر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پھر آپ بیچ میں اپنا وہی لچ تل رہے ہیں، یہ لچ میں نہیں تلنے دوں گی آپ کو۔ اب مطلب جو بھی آپ ہر وقت ہر بات میں آپ ڈاکٹر روپا کو لے کے آتے ہیں اور کوئی بات نہیں پوچھ سکتے۔ میں فین ہوں ان کا۔ السلام علیکم، میں تہاڈا دیسی اینکر زاہد خان تے میرے نال بیٹھے نے سونیا ملتانی، جڑے کہ کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں، بہت ہی اچھی ایکٹرس تے آفتاب اقبال دی ٹیم دا ایک اہم حصہ۔ اج جڑے اسی سوال سونیا ملتانی سے لے کے آئے ہیں، امید ہے کہ ساڈی بحث بھی ہو سکتی، اسی ہتھوں پائی بھی ہو سکتے ہیں۔ تے ساڈا چینل جنہیں جنہیں سبسکرائب نہیں کیتا لازمی کر لو، کیونکہ اج گل ودن والی جے، کیونکہ آفتاب اقبال صاحب یو کے ٹیم لے کے جا رہے ہیں۔ اج اسی دساں گے ٹیم چ کیڑا کیڑا بندہ جا رہا، کیڑا کیڑا مس ہویا، کیوں مس ہویا، جا کیوں رہا ہے۔ تے اج ہون گے سچیاں تے کھریاں گلاں سونیا ملتانی نال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے جو میرا انٹرویو کیا، آج آپ پھر آ گئے ہیں، لوگوں نے کتنے برے برے کمنٹس کیے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ کیا کیا؟ میرے آج تک ان باکس میں کسی نے بیڈ کمنٹس نہیں کیے تھے، اور انہوں نے پٹھے سیدھے کمنٹس کیے ہیں میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، کہ آپ جان بوجھ کے مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کچھ بھی نہیں اگلوانا چاہتا، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ میری جو عوام ہے، میرے جو ویورشپ ہے، وہ سچ سننا چاہتی ہے۔ آپ سچ بتائیں، بات ختم۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے میرے استاد نے، ہمارے بوس آفتاب صاحب نے سمجھایا کہ کبھی کیمرے سے نہیں ڈرنا، کبھی کسی کے سوالوں سے نہیں ڈرنا، آپ نے ہمیشہ فیس کرنا ہے۔ اوکے، تو آپ نے ابھی کہا نا کہ میں نے دوبارہ انٹرویو کرنا ہے، تو میں اس لیے میں نے انٹرویو میں دے رہی ہوں، لیکن میں کسی کیمرے سے کسی سوال سے نہیں ڈرتی۔ آپ اگر پوچھو گے تو اگر آج آپ نے کوئی پٹھے سیدھے سوال کیے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہیں، جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی۔ نہیں، میں کوئی قتل کر کے آئی بیٹھی ہوں کہ میں جو کہاں گی سچ کہاں گی، سچ دے علاوہ کچھ نہیں کہاں گی؟ میں کوئی جرم کر کے آئی بیٹھی ہوں؟ نہیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو، جو بولیں گے سچ بولیں گے۔ میں سچ ہی بولوں گی، جو بولوں گی، جو حقائق۔ اگر سچ بولیں گی تو سب سے پہلا اور تلخ سوال، آفتاب اقبال صاحب یو کے ٹیم لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جا نہیں رہے، وہ پہلے گئے بیٹھے ہیں وہاں پہ یو کے۔ دیکھا، اچھی بات، سچ، وہ گئے بیٹھے ہیں۔ جی۔ کون کون گیا ہے؟ بوز ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہماری کو ہوسٹ اروبا وہ تھیں، اور ان کی فیملی بھی وہیں پہ ہیں، تو اب وہ ٹیم کو بلا رہے ہیں۔ ببو رانا جی، ببو رانا جا رہا ہے، پنو بھی جا رہا ہے اس کی، ماہم کمال، جی جی بالکل، وہ بھی جا رہی ہے۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ اظہر رنگیلا جا رہا ہے۔ ویری گڈ۔ اور اس کے ساتھ بس ڈاکٹر روبا کو تو میں پوچھوں گا نہیں۔ ڈاکٹر روبا، ظاہری بات ہے وہ بھی تو اس ٹیم کا حصہ ہے۔ وہ حصہ نہیں، یہ ٹیم ہی ان کی ہے۔ وہ ہماری کو ہوسٹ ہے نا، ہماری ہوسٹ ہے ہمارے پروگرام کی، تو اس کا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ ہاں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیم ہی ان کی ہے، ان کا تو پوچھنا ایک بیوقوفی ہے کہ وہ جا رہی ہیں یا نہیں۔ وہ تو وہاں موجود ہوں گی، باقی ٹیم وہاں پہنچی ہوگی۔ اچھا، نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اس کے بغیر خبرہار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ خبرہار کا حصہ رہی ہیں، تو خبرہار شو اگر دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے یو کے سے، تو وہ بھی وہاں پہ ظاہری بات ہے موجود ہوں گی، وہ حصہ ہے ٹیم کا۔ بالکل، ٹیم کا بھی حصہ ہے۔ اور اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آفتاب اقبال کی بہن، وہ آپ کا بڑا بھائی۔ جی بالکل۔ اب جو میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں وہ بڑا تلخ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب نہ دیں، لیکن آج سچ بولیں گی اور جواب دیں گی۔ آفتاب اقبال کی ٹیم پر بہت بہت برے وقت آئے، جی، آپ ساتھ تھی۔ کافی ٹیم چھوڑ کے گئی، آپ ساتھ تھی۔
काफ़ी लोग वापस आए, आप साथ थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब मुबैना तौर पे बताया जाता है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने टीम की पेमटों पर टोके मारे, पेमटें आधी कर दी, कम कर दी, और काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उस टोके में आप फिर बच गई, आप साथ थी। उसके बाद एफआईआर होती है आफ्ताब इकबाल साहब पर। आप सुबह से लेके शाम तक कचहरी में रहती हैं और अपने बड़े भाई, जिसे आप कहती मेरे बाप की तरह बड़ा भाई है, उनको शाम को आप कचहरी से लेके आती हैं। बाकी बहुत से लोग थे, लेकिन आप साथ थी। जाहिर बात है, वो हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे बाप की जगह पे हैं, हम उनको भाई कहते हैं, वो मुझे बहन कहते हैं। तो हर मोड़ पे, हर जगह पे साथ रहना हमारा जरूरी था। हम उनको मुश्किल वक्त में मतलब उनको मुश्किल वक्त में हम छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमारी टीम जब भी किसी टूर पे जाएगी तो सोनिया मुल्तानी हमारी टीम का अहम हिस्सा होंगी, मेन हिस्सा होंगी। सोनिया मुल्तानी जो कि आफ्ताब इकबाल साहब की बहन है, वो साथ होंगी, आप साथ होंगी। ये बात सच है? उन्होंने ये ऐलान किया था? जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि अब जब भी हमारी टीम बाहर जाया करेगी तो सोनिया मुल्तानी साथ हुआ करेगी। उसके बाद 10 अगस्त को आपका बड़ा भाई, बाप की जगह, उनका इंतकाल हो जाता है। 11 अगस्त को आफ्ताब इकबाल साहब की कॉल आती है कि सोनिया जी आपने लाजमी आना है, क्योंकि हमारी एक प्रोग्राम है, वो चाइनीज जो ट्रांसलेट करती है लड़की, वो आपने रोल करना था, किसी तरह भी मैनेज करें। हमें पता है कि आपके बड़े भाई का इंतकाल हुआ है, लेकिन ये एक जो काम है ये लाजमी करना है, तो आप मैनेज करें। आप सराइकी पट्टी की रहने वाली हैं और सराइकी पट्टी में ये रवाज है कि 3 दिन सोग तो होता है, उसके बाद फिर जुमेरात जो पहली होती है पूरा ख़ानदान वहाँ होता है। लेकिन 11 अगस्त को आप अपने ख़ानदान को छोड़ के, अपने बड़े भाई का सोग छोड़कर आफ्ताब इकबाल साहब के पास पहुंची और प्रोग्राम किया, तब भी आप साथ थी। मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि मुझे आफ्ताब साहब की कॉल नहीं आई थी। हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, क्योंकि प्रोग्राम पहले से डिसाइड हो चुके थे कि ये सेगमेंट करने हैं। उन दिनों की बात है कि उनके पास कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं थी, सिर्फ मैं थी और जेंट्स थे हमारे पास। और प्रोग्राम इस तरीके से था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर मुश्किल वक्त में मैं अपने भाई के साथ खड़ी रही, शाना बशाना। हर मुश्किल वक्त में, चाहे वो धूप थी, आंधी थी, तूफान था, कुछ था, काली अंधेरी रात थी, मतलब जिन लोगों ने साथ खड़े होना था, साथ निभाना था, उनमें मैं भी शामिल थी। मैं अपने भाई के साथ खड़ी रही, क्योंकि आफ्ताब साहब मुझे बहन भी कहते हैं, अपनी शागिर्द भी कहते हैं। तो उस वक्त ये मामला था कि जब करैक्टर तय हो गए थे और यहाँ पे पूरी टीम में फीमेल नहीं थी और सिर्फ मैं थी और मेरे भाई की, सके भाई की डेथ हुई। मैं अपने भाई के लिए मैं सारी रात 9 अगस्त को मैंने सफर किया। 10 अगस्त को मेरे भाई की डेड बॉडी आ गई, क्योंकि पेशावर में उनकी डेथ हुई। वो ऑयल टैंकर चलाते थे। उनके कफन दफन की करा के, तदफीन करा के, हम जो है ना घर में जब बैठे हैं तो मैं वहां से निकली हूँ सारा सफर के। अगले दिन 11 अगस्त को मैं यहाँ में टीम के पास आई, अपने खबरार को मैंने ज्वाइन किया और मैंने काम किया। और क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरे वजह से मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम ना हो, आफ्ताब साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरे प्रोग्राम को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप तब भी अपने भाई आफ्ताब इकबाल साहब के साथ थी? जी बिल्कुल, मैंने उनका साथ निभाया कि मुश्किल वक्त में हमने इनको नहीं छोड़ना। और मुश्किल वक्त में जाहिर बात है हमारा बनता भी नहीं था कि हम अपने भाई को किसी लम्हा अकेला छोड़ें। ये सब जगह आप साथ थी, दिन था, रात था, मुश्किल थी, आंधी थी, तूफान था, गम था, खुशी थी, दुख थी, कुछ भी था, सोनिया मुल्तानी अपने भाई, अपने टीचर, अपने बॉस आफ्ताब इकबाल के साथ थी। जी बिल्कुल। और जबकि यूके टीम पहुंच गई है, सोनिया मुल्तानी कट है, क्या वजह? ऐसा कौन सा इंसान है, शख्स है, या आफ्ताब इकबाल साहब खुद है? क्या वजह है कि वो और जो आफ्ताब इकबाल का अपना बड़ा भाई, अपना बाप, अपना बॉस, अपना टीचर, अपने भाई की डेथ को छोड़कर, खुशी गमी, दिन रात आंसू छोड़कर अपने भाई, अपने बॉस के साथ ही जब यूके टीम जाती है, तब वो बहन, वो शागिर्द कहाँ है? क्यों नहीं साथ? क्यों कट है? ये हमारी आवाम को बताएं जरा।
देखें, हो सकता है कि मैं उस टीम के हिसाब से, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी ना उतर रही हूँ। ऐलान क्यों किया गया कि जब भी टूर होगा सोनिया मुल्तानी साथ होगी, ये हमारी टीम का हिस्सा है, ये ऐलान किया था आफ्ताब इकबाल साहब ने? हो सकता है कि मेरा मुंह वैसा ना हो यूके वाला, हो सकता है मैं उस कैलिबर की आर्टिस्ट ना हूँ, ये भी तो हो आफ्ताब सकता है। इकबाल साहब ने ये ऐलान किया था, ये आप गवाही देती हैं कि जब भी टूर जाएगा सोनिया मुल्तानी हमारी सबसे पहली फेवर में होंगी, सबसे पहले होंगी, ये बात हुई थी? जी बिल्कुल। ये क्यों नहीं यूके गई आप साथ? जाहिद भाई, अब उनको पता कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलवाया, क्यों नहीं टीम का हिस्सा बना। आप अपने भाई की डेथ को, अपने खानदान को छोड़ के अपने भाई के पास जाती हैं। एफआईआर पे एक औरत आता है कि कचहरी पे सुबह लेके शाम तक आप साथ होती हैं, पेमटे कम होती हैं आप साथ होती हैं, दुख सुख होता आप साथ होती हैं, यूके क्यों नहीं साथ? जाहिद भाई, वो मेरी वफा थी जो अपने इदारे के साथ, अपने शो के साथ और अपने बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ थी। और मैं हमेशा ही अपनी टीम, अपने इदारे के लिए एक अच्छी मैंने सोच रखी है और मैं अब भी अच्छी सोच रखती हूँ। बल्कि मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जो टीम जा रही है, अल्लाह करे वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करे और वहाँ पे तरक्कियों की जो नई मनाजिल है वो तय करे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है मुझे। सोनिया जी, आपने बड़े बड़े कॉमेडियन को मत्था दिया है, टक्कर दी, आपने कॉमेडी की और माशाल्लाह ये अवाम भी जानती है और सब लोग जानते हैं, जो एक्टर है, जो एक्ट्रेस है, वो भी जानते हैं कि सोनिया मुल्तानी एक बड़ी एक्ट्रेस है, कॉमेडियन भी है और परफॉर्म भी करती हैं। आप उस कैलिबर की हैं, ये दुनिया जानती है, फिर क्या वजह आप साथ नहीं गई? वो कहते हैं ना कि जो इंसान के नसीब में होता है, आपने अगर किसी जगह पे जाना भी हो तो आपके नसीब में लिखा होता है। हो सकता है जाहिद भाई कि अभी मेरे नसीब में ना हो कि मैं यूके नहीं जा सकती। आफ्ताब इकबाल साहब खुद नहीं लेके जा रहे, या कोई आप दोनों बहन भाई के दरमियान में शैतान है या कोई ऐसा शरारती है? मैं अपने अल्फाजों की माफ़ी चाहता हूँ कि ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन ये आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में ना गलत बात सुनना पसंद करती हैं ना बोलती हैं, क्योंकि वो इन्हें बहन कहते हैं, ये भाई कहती हैं। कोई शरारती, कोई शैतान होगा जो आपके बहन भाइयों में इख्तलाफ या वो फासले पैदा कर रहा है? देखिए, कोई भी अगर आ जाए, लेकिन मुझे अपने काम पे हमेशा यकीन रहा है। जाहिद भाई, मैं प्रॉपर एक आर्टिस्ट ना थी ना हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जो काम नहीं आता था या जो मुझे स्क्रिप्ट दिया जाता था, जो मुझे कैरेक्टर दिया जाता था, अगर एक दफ़ा मुझसे नहीं होता तो मैं दूसरी दफ़ा कोशिश करती थी, मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी घर आके। अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करती रही, मैं सीखती रही। हो सकता है कि मैं आने वाले वक्त में इस काबिल बन जाऊँ कि मैं यूके आपको नजर आऊँ, ठीक है? तो इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई भी सिखाए कुछ भी, अगर मैं इस काबिल होंगी तो मेरा बड़ा भरा मेरे साथ खुद राब्ता करेगा और मुझे बुलाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर रुबा वही है? जी बिल्कुल, वो टीम का हिस्सा है। ज्यादा क्या मतलब, बार बार आप क्यों उसका जिक्र करते हैं? अवाम मुझसे पूछती है, खुदारा ये मेरे जाती अल्फाज नहीं, इतने कमेंट्स आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं कि डॉक्टर रुबा वहीं पे रहती हैं, वो टीम का इतना खास हिस्सा है कि ये लोगों को सवाल है, खुदारा ये मेरे जाती सवाल है। जायद भाई, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, वो टीम का मेन हिस्सा है और दीगर प्रोग्राम की भी वो होस्ट है, उसने साथ रहना है। आप बार बार इस बात पे क्यों जोर देते हैं? मतलब आपने पहले भी मेरा व्लॉग खराब करवाया, इंटरव्यू, ठीक है? अब फिर आप बीच में अपना वही लुच तल रहे हैं। ये लुच मैं नहीं तलने दूंगी आपको। अब मतलब जो भी आप हर वक्त हर बात में आप डॉक्टर रूपा को लेके आते हैं और कोई बात नहीं पूछ सकते। मैं फैन हूं उनका। तो फैन तो बहुत, उसके बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, बहुत पूरी दुनिया है, तो आप बार बार क्यों पूछते हैं? आपको पता ना वो इस टीम का हिस्सा है। अब सुन लें, वो इस टीम का हिस्सा है, वो खबरहार की को होस्ट है और दीगर प्रोग्राम की होस्ट है और वो अब वहीं पे है और वो वहां पे पहले भी आती जाती रहती थी। ये सुन ले, दोबारा सुन ले, वो इस टीम का हिस्सा है। आती जाती तो मैंने नहीं देखा, सिर्फ जाती जाती रहती है, आती तो मैंने नहीं देखा कभी भी। जायद भाई, मेरी बात सुने, वो जब खबरहार यहाँ पे पाकिस्तान में भी करती थी ना, हर 5 माह के बाद वो जाती थी, 2-3 माह के लिए वो आती जाती रहती हैं, वो टूर करती रहती हैं, पूरी दुनिया को पता है। आप इस बात पे जोर ना दें, लोग अजीब अजीब फिर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर रुबा मेरे लिए इज्जत की जगह है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ऑलरेडी उनका फैन हूँ, उनकी गुफ्तगू का, उनकी पर्सनैलिटी का। बहुत ही सोबर और अच्छी खातून है। मेरी तरफ से कोई नहीं, ये लोगों के सवाल है। पता नहीं डॉक्टर रुबा के बारे में लोग बार बार मुझसे क्यों कहते हैं, इनसे पूछें कि डॉक्टर रुबा ज्यादा वक्त वहां क्यों गुजारती है इस टीम में। मैं क्या करूं, लोग पूछ रहे हैं, मैडम मेरा ना जवाब दें। ओके, डॉक्टर रुबा वही है, बात खत्म। अच्छा ये बताएं, जितनी कुर्बानियां आपने दी इस शो के लिए, आफ्ताब इकबाल साहब के लिए, किसी और ने भी दी है इतनी कुर्बानियां? जैसा कि जिस तरह आप भाई की डेथ हुई है, अगले दिन ही आ गई हैं, कोई इस तरह की परेशानी हो, लेकिन
लोग पहुंचे हों, उन्होंने अपना दुख ना देखा, कोई ऐसे वाक़ये और लोगों के साथ भी हुए? जी ऐसा वाक़या मेरी आंखों के सामने एक दफ़ा सखावत नाज हमारे साथ काम कर रहा था खबरहार में, तो हमें पता चला कि उसकी सिस्टर की डेथ हो गई है। तो हमने यही समझा कि आज वो नहीं आएगा, तो घंटे डेढ़ के बाद वो आ गया। तो हमने सब ने अफसोस किया, फातिहा पढ़ी, तो पूछा तो उसने कहा मैं सीधा कब्रिस्तान से यहाँ आ रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और वाक़या हुआ, बब्बू राना, उनके बड़े भाई की डेथ हुई, वो भी जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान से सीधा शो पे आया। तो मतलब हम वो लोग हैं कि जो रेगुलर अपने बॉस के साथ, आफ्ताब साहब के साथ खड़े रहे, हम अपने गमों को एक साइड पे रख के यहाँ पे आकर परफॉर्म किया, काम किया, और बल्कि लोगों को हमने हंसाने का काम किया और किसी को फील नहीं होने दिया कि हमारे अंदर क्या दुख है या हमारी फैमिली रो रही है या हम रो रहे हैं। डॉक्टर रूबा ने भी कभी ऐसी कोई कुर्बानी दी? सॉरी, ये तो लोगों के सवाल थे, आप तो मुझे गुस्सा करती हैं, आप कह दे नहीं करती यार। जैद भाई मेरी बात सुने, डॉक्टर अरूबा एक अच्छी होस्ट है, ठीक है, No doubt. और एक अच्छी बंदी है, मैं खुद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज तक मेरा अपना पर्सनल, जो हमारे कुलीग है ना, मेरे अपने कुलीग जैसे आप बैठे हैं, मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुसती हूँ ना मेरी जिस तरह आपने सखावत नाज साहब के बारे में वो भी बताया, पूरी बब्बू टीम को राना जैसे पर- पता चला नहीं, तो इस तरह मतलब डॉक्टर रूबा ने भी कभी कोई कुर्बानी दी? नहीं, मैंने कभी नहीं ना उनको देखा, ना मैंने सुना है कभी कोई ऐसी, ये वो प्रॉब्लम है, ये पूरी दुनिया को पता चलती है, टीम को पता चलती है अगर घर में कोई इस तरह का मसला हो। तो वैसे मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में घुसी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। 2 माह सुनो टीवी चैनल है जो, उस जी, पे जी। आपने परफॉर्म किया, क्या वजह थी? 2 माह ही किया, उसके बाद चली गई, आने की क्या वजह थी, जाने की क्या वजह थी? जाने की ये वजह बनी थी कि क्योंकि मैं रेगुलर खबरहार का हिस्सा थी, तो यहाँ पे कुछ न्यू एंट्रीज हुई थी और मुझे ये लगा कि न्यू एंट्रीज जो है ना, उन्होंने इस तरीके से सबको कवर किया, मुझे टॉर्चर कर रही थी मेंटली तौर पे, और मैं रेगुलर काम करने वाली बंदी हूँ, जहाँ मुझे टेंशन और परेशानी हो मैं वहाँ पे काम नहीं करती। तो मैंने बारहा मैंने अपनी टीम के जो हमारे प्रोड्यूसर थे, बड़े थे, मैंने उनको बताया कि मुझे टेंशन दी जा रही, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्होंने मेरी उस वक्त नहीं सुनी थी। तो फिर मैं चुप करके ना यहाँ से चली गई। जब मैं चली गई 2 माह के लिए, मैं सुनो टीवी मस्तियाँ प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे आफ्ताब साहब की एक बात याद आई कि हमेशा मैदान में रहो, मैदान में आप खेलो, और अगर कोई मसला है तो उसको फेस करो। फिर मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त नए नए मसले हुए थे बॉस के ऊपर, क्योंकि हम लीनियर से हट गए थे, समा से हट गए थे, और हम यूट्यूब पे थे, उस वक्त बॉस के ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा था। मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुमने अपने भाई को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो आज तुम टीवी की मतलब चक्कर में, टीवी की लालच में भी हम टीवी पे नजर आए, चैनल पे नजर आए, तो आज आप यूट्यूब छोड़ के, आप अपने आफ्ताब साहब को, अपने भाई को छोड़ के टीवी के चैनल के चक्कर में तुम यहाँ पे आ गए हो। तो उस बात ने मुझे इतना दुख दिया, आप यकीन करें, मुझे यहाँ सुनो टीवी पे सुनो जो प्रोग्राम था मस्तियां, मुझे उसमें आफ्ताब साहब से डबल पेमेंट मिल रही थी। लेकिन जब मुझे लोगों ने ये बात की कि आप लालच में आई हो कि मुझे फेम चाहिए, मेरा फेस इसमें चैनल पे नजर आए, मैंने उसी वक्त वहां पे वो सुनो का प्रोग्राम कट किया, मैं वापस आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में गई कि लोग मुझे ये ताना ना दें कि मैंने मुश्किल वक्त में अपने भाई को छोड़ दिया। अब क्यों आप मुश्किल वक्त में बाहर हैं, यूके क्यों नहीं गई? शायद भैया मैंने कहा, अब ये सोनिया जी तो अब जवाब दे चुकी हैं, आप बताएं यूके क्यों नहीं गई? इन्होंने वो वक्त गुजारे आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, इन्होंने बहन होने का हक अदा किया, क्या आफ्ताब इकबाल साहब ने भी भाई होने का हक अदा किया? इन्होंने एक अरसा, एक टाइम दिया उस टीम को, लेकिन यूके टीम पहुंच चुकी है और कुछ लोगों के अभी कुछ कागजात वगैरह या कुछ मामलात रहते हैं, वो टीम पहुंचने वाली है। सोनिया मुल्तानी को क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? क्या आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से कोई इश्यू हो सकता है, या तीसरा रलिया ते चुगा गलिया, इनके दरमियान में तीसरा है कोई जो इनमें इख्तलाफ पैदा कर रहा है? काना पूसी जो होती है कि आफ्ताब साहब, ये जो सोनिया है ना, ये ऐसे है और आप देख लें, और क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब मुबैना तौर पे ये सुना जाता है कि जब उन्हें कोई बात की जाती है तो वो उस बात की पेन लेते हैं कि यार मेरे तक ये बात आई है। हो सकता है कोई तीसरा बंदा सोनिया मुल्तानी जी के बारे में कोई शरारत कर रहा है आफ्ताब इकबाल साहब के कान में, ये हो सकता है। आप क्या कहते हैं, सोनिया मुल्तानी यूके टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनी? मेरी बात सुने जायद भाई, यहाँ पे मैं एक बात कहती चलूँ सबको, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आपके चैनल पे देखते हैं, मेरे चैनल पे देखते हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, यकीन करें बाहर जाने की ना तो मुझे पहले कभी कोई ख्वाहिश थी, ठीक है, ना मुझे अब, अगर मैं नहीं गई तो मुझे कोई टेंशन नहीं है।
मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने जिसको जिंदा रखना है, जिसको रिस्क देना है, वो दुनिया के किसी कोने में हो, वो पत्थर में भी कीड़ा ना, रब उसको भी रोजी देता है, ठीक है। तो मैं जहां भी हूं, मैं अल्लाह ताला की रजा से यहाँ पे हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि रब मुझे यहाँ भी वो तरक्की दे सकता है, वो इज्जत दे सकता है जो मुझे यूके चल के मिलनी थी। तो मेरा रब मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आपको टेंशन नहीं है। आप लाजमी बताइएगा कि सोनिया मुल्तानी यूके टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनी, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप आफ्ताब इकबाल साहब को बहुत गौर से देखते हैं और आप जानते हैं। मजीद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं सोनिया मुल्तानी जी के पास आके आपके सवाल का जवाब लेके दूंगा। आफ्ताब इकबाल साहब के या उनकी टीम के हवाले से कुछ भी आपको पूछना हो तो सोनिया मुल्तानी जी हमें वो जवाब देंगे। तो मुझे और सोनिया मुल्तानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।